See, in today's lecture, we'll be studying about fact, value and objectivity. See, हम ऑलरेडी फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हम अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. हमने पॉजिटिविज्म को कवर किया था 2 लेक्चर्स में, एंड देन क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म वी कवर्ड इन ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स, राइट. सो इन प्रीवियस 5 लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी. हम क्या करेंगे अब, इसको क्या है, असेंबल करेंगे, राइट. So there is nothing much to explain. If you want to be able to understand this topic, I'll advise you to refer back to the previous lectures. So I'll be trying to make it brief. Right. Fact, value and objectivity. See, we have studied about facts. Fact is something which has an independent external existence of its own. Right. A fact will remain a fact. Its truthfulness can be verified. Right, it can be classified as either true or false. For example, sun rises in the east. हमने देखा था सन हमेशा ही ईस्ट में राइज करेगा. दिस इज अ फैक्ट. मैंस प्रेफरेंसेस, मैंस टेस्ट, मैंस वैल्यू, जजमेंट्स, मैंस इमोशन वॉन्ट चेंज दिस फैक्ट. ठीक है. वैल्यूज हमने पढ़ा था समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज डिजायरेबल, एज इंपॉर्टेंट, राइट. तो वैल्यूज मतलब will be passing value judgments, will be categorizing and classifying something as good, something as desirable, and will be passing value judgments about other things, categorizing them as bad or undesirable. So that is value. So value and fact are polar opposites to each other. Fact is independent of man's preferences, emotions, man's ideology, whereas values is driven or shaped by man's tastes, man's preferences, man's emotions and man's ideas, right. ऑब्जेक्टिविटी भी हमने पढ़ा था. तो इसको इंट्रोड्यूस करोगे आप टॉपिक को, तो यू विल बी राइटिंग अबाउट पॉजिटिविस्ट. वी स्टडीड अबाउट पॉजिटिविस्ट लाइक. तो आपको कॉम्ट, ऑगस्ट कॉम्ट और डोरखाइम को मेंशन करना पड़ेगा. तो यू शुड बी टॉकिंग अबाउट वैल्यू न्यूट्रलिटी, राइट. डोरखाइम बोलते हैं कि, और कॉम्ट बोलते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट शुड बी वैल्यू न्यूट्रल. He should be fact oriented, he should be data oriented, he should not pass value judgments. His own values, his own emotions, his own taste, his own ideas should not manipulate, should not dilute the social research. Social research should be carried out as it is, right. So they advocated against value neutrality. We saw that social, Durkheim तो बोलते हैं कि social facts should be treated as thing. So you should be writing things, social facts. When Durkheim says social facts are external to an individual, right, and they have a separate existence of their own. So this social fact is external to an individual. So it means it has its own existence. It is independent of the individual. It is independent of individual's ideology or ideas. It has a separate existence. So all the individuals, all the sociologists should be looking at it in a similar manner because it is separate. There is a distance between the known and the knower, right? It has a separate existence. So since this is separate, every sociologist will be looking it in the same manner. So here objectivity will be ensured. For example, अगर prelims का question आता है, then we say prelims is an objective examination. Everyone will be coming to the same conclusion. If they are getting the question right, they will be coming to the same conclusion, to the same answer. Whereas mains is subjective. Everyone will be writing their own ideas, right? So here Durkheim says since social facts are external to the individual, everyone will be looking at it in a similar manner. So he says individuals can gather data about these social facts. Since this data is lying outside of their own minds, so their own ideas, their own mindset won't be able to interfere or dilute the social research. So they talk about value fact dichotomy. Values and facts should be kept separate in social research. तो सबसे important sociologist हैं who talks about values and value neutrality is Weber. तो वेबर बात करते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में और वैल्यू रेलेवेंस के बारे में. तो वेबर बोलते हैं कि वैल्यूज हैव सम रोल टू प्ले
इन सोशोलॉजिकल स्टडीज, कुछ ना कुछ वैल्यूज का रोल रहेगा। तो वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या होगा? सी ही सेज कि फर्स्ट कि अ सोशोलॉजिस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ रिसर्च, on what topic he or she should be conducting the social research that is shaped by his values, right? For example, Weber's mother was a Protestant and his socialization took place in such a manner that he kind of, you could say, admired Protestant ethics and values. So his the topic of research that he chose was he wanted to study about Protestant ethics. Then he came to the conclusion that Protestant ethics led to the development of spirit of capitalism in the Western world, right? We'll be studying about Protestant ethics and spirit of capitalism while we'll be talking about Weber. Second, he says कि once you have chosen the topic of research, then you need to be constructing an ideal type. So what kind of ideal type should be constructed? तो उसकी फीचर्स क्या होंगी आइडियल टाइप्स की? उसकी जो फीचर्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेगी, हम देखेंगे कि आइडियल टाइप क्या है। इट इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। तो जब वो ब्यूरोक्रेसी का फॉर एग्जांपल एक आइडियल टाइप बनाएंगे तो उनके माइंड में क्या इमेज है ब्यूरोक्रेसी की, उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकती हैं, हाउ ही परसीव्स ब्यूरोक्रेसी, सो दैट इज शेप्ड बाय हिज ओन माइंडसेट, दैट इज हिज ओन वैल्यूज। तो ये बोल रहे हैं कि आइडियल टाइप को कंस्ट्रक्ट करने में तो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी और टॉपिक ऑफ रिसर्च को भी चूज करने में। इन दो जो स्टेप्स हैं, देयर विल बी यूजिंग वैल्यूज, राइट। तो आइडियल टाइप के फीचर्स कंस्ट्रक्ट करने में जरूरत पड़ेगी। लेकिन वंस यू हैव चूज द टॉपिक ऑफ रिसर्च, देन he advocates complete detachment and value neutrality. Then he says a sociologist should conduct social research without any values. He should not be passing value judgments, right? He should study the social reality as it is and with complete detachment, right? तो जब आपका आइडियल टाइप बनता है तो उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देन सोशोलॉजिस्ट क्या है, प्रीवियस उस टॉपिक से रिलेटेड कोई लिटरेचर एग्जिस्ट करती हो तो उसमें भी मल्टीपल बुक्स हो सकती है, मल्टीपल लिटरेचर हो सकती है, मल्टीपल थेरीज हो सकती है उस सेम टॉपिक के बारे में। तो विच बुक टू चूज, दैट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय योर प्रेफरेंसेस, दैट इज योर वैल्यूज। वंस यू हैव फॉलोड दीज टू स्टेप्स एज पर वेबर, दैट इज आपने जो टॉपिक क्या होगा रिसर्च का वो चूज कर लिया, और आपने सेकेंड जो होगा आपने आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करने के लिए वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सो ही सेज दैट दिस इज वैल्यू रेलेवेंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी इज डिफरेंट। फिर हम पढ़ेंगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मालिनोव्स्की और बॉस बोलते हैं, दे टॉक अबाउट कल्चरल रिलेटिज्म, राइट। तो वो सोशोलॉजिस्ट को दे क्वेश्चन द सोशोलॉजिस्ट अगेंस्ट इथनोसेंट्रिक बायस, राइट। सो दे एडवोकेट दैट सोशोलॉजिस्ट शुड नॉट बी सीइंग the culture of others, that is the culture they are studying through their own lens, through the lens of their own culture. For example, if a western sociologist जिसका सोशलाइजेशन ही पूरा वेस्टर्न कल्चर में हुआ है, जिसने वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी इम्बाइब की है, नाउ अगर वो उसका जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है, फॉर एग्जांपल इट इज यू कुड से मिडल ईस्टर्न सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज, तो ये बोलते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मालिनोव्स्की और बॉस कि वो दूसरे जो कल्चर को है अपने कल्चरल लेंस के थ्रू नहीं देखेगा, राइट। जिस हिसाब से उसका सोशलाइजेशन हुआ है, जिस कल्चर में, जिस कल्चर के थ्रू उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिसको वो एडमायर करता है अपने कल्चर के थ्रू, उस कल्चर के थ्रू वो दूसरे कल्चर को स्टडी नहीं करेगा, ये जो कल्चरल लेंस है उसको हटा के स्टडी करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल रिलेटिविज्म। अगर दूसरे कल्चर की he should not be passing value judgments. He should not say that my culture is good, or I found the cultural practices of the culture that the sociologist is studying as good or bad, or something the cultural practices are weird. तो उसको वो वाली वैल्यू जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक कल्चर क्या है, इट इज़ एन इन्वेंशन ऑफ मैन। एक वर्ल्ड व्यू को क्रिएट किया जाता है, और दिस कल्चर और दिस वर्ल्ड व्यू फैसिलिटेट्स सोशल ऑर्डर, राइट। इट ब्रिंग्स सोशल स्टेबिलिटी, इट प्रोवाइड मीनिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो उसको वैसे वैल्यू जजमेंट्स पास नहीं करना चाहिए, रादर ही शुड स्टडी द कल्चर विद डिटैचमेंट एंड कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रलिटी।
तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, मालिनोव्स्की और बोस-को-भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सोशोलॉजिस्ट ट्राइबल स्टडीज़ करता है और ट्राइबल स्टडीज़ करते हुए अगर उसको कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस वियर्ड लगती हैं, ही शुड नॉट फर्स्ट बी सेइंग दैट प्रैक्टिसेस आर वियर्ड, उसको बस ऑब्जर्व करना है, राइट, वैल्यू न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए और एक डिटैच्ड एटीट्यूड के साथ उसको जो उसको कल्चरल प्रैक्टिसेस उसके सामने आ रही हैं उसको एज इट इज़ अपनी सोशल रिसर्च में मेंशन करना है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ आर सिविलाइज्ड और द ट्राइबल सोसाइटीज़ आर barbarized, barbaric civilizations, so he should not be passing these kind of value judgments. अब इनके क्रिटिक के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यू, फैक्ट वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी के क्रिटिक के बारे में। सबसे पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी, ये तीनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिविस्ट का क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या कंटेंशन है? सी, पॉजिटिविस्ट सेज द सोशल रियलिटी इज सेपरेट, एक्सटर्नल and independent of an individual. For example, Durkheim says social facts are external to an individual. Now हमने पढ़ा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट क्या बोलते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट बोलते हैं देयर इज नो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोशल वर्ल्ड, रादर दिस सोशल वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल थ्रू रेगुलर डे टू डे एवरीडे लाइफ इंटरेक्शंस, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो सोशियोलॉजी, हमने पढ़ा था। और इसी टर्म को बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, राइट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू शुड बी रेफरिंग टू द प्रीवियस लेक्चर्स। फिर हमने जब पढ़ा था इथनोमेथोडोलॉजी के बारे में, तो हमने हैरोल्ड गारफिंकल के बारे में पढ़ा था। और हैरोल्ड गारफिंकल बोलते हैं कि पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन वर्ल्ड व्यू, हर जो लोग हैं, जो कल्चर हैं, जो नेटिव्स हैं वहाँ के, इसलिए इसको बोलते हैं इथनोमेथोडोलॉजी। जो नेटिव्स हैं वो अपना वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं, और जो सोशल ऑर्डर, जब पॉजिटिविस्ट बोलते हैं देयर इज अ सोशल ऑर्डर, देयर इज सोशल स्टेबिलिटी एंड दिस सोशल रियलिटी इज एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट, सो देयर इज अ सेपरेशन और अ डिस्टेंस बिटवीन अ सोशोलॉजिस्ट एंड बिटवीन दैट इज समथिंग दैट इज to be studied. Since there is separation, one could gather data out of their own minds, one could have value neutrality, one could have detachment, because these are separate, external, independent. ये इनको कंसिडर करते हैं कि रादर ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये पीपल ने इथनो मैथोडोलॉजी अपने नेटिव मेथड्स का यूज करके ये वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट किया है। और जो सोशल ऑर्डर, जो जिसके बारे में पॉजिटिविस्ट बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ सोशल ऑर्डर is an illusion, right? Why this is an illusion? We talked about it while we studied about ethnomethodology. Phenomenology में अल्फ्रेड शूट्स भी सेम बात करते हैं। अल्फ्रेड शूट्स का हमने देखा था कि he talks about bracketing, right? वो बोलते हैं कि nothing is absolutely objective or nothing is absolutely true or false. You can't put phenomena in categories of absolute as being absolutely true or as being absolutely false. If you remember, he also talked about typifications, right? तो बोलते हैं कि वो पॉजिटिविस्ट के जो डेटा कलेक्शन मेथड है उसी को ही बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो बोलते हैं डेटा जो कलेक्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड, मैन हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड things and typified them and put them these phenomena in certain classification, in certain categories, उसको वो typification बोलते हैं, right? We studied about it. क्रिटिकल थियरिस्ट क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था मैक्स हॉर्खहाइमर के बारे में पढ़ा था, आडोर्नो के बारे में पढ़ा था, और सिमिलरली एल्विन गोल्डर को भी ऐड कर देते हैं। एल्विन गोल्डर तो बोलते ही हैं ही इज हाफ सोशोलॉजिस्ट एंड हाफ मार्क्सिस्ट, राइट? तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं कि वैल्यू न्यूट्रलिटी इज नॉट डिजायरेबल, सोशोलॉजिस्ट शुड नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम सोशल रियलिटी और सोशल स्टडीज, रादर a sociologist is not only a social researcher, he is also a social reformer, he is also a social activist. So the aim of the sociologist is to change the society for the better. तो अगर आप वैल्यू न्यूट्रल है, इफ यू आर नॉट टेकिंग साइड्स, इफ यू आर नॉट क्लासिफाइंग समथिंग एज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, इफ यू आर नॉट क्लासिफाइंग समथिंग एज गुड और बैड, इफ यू आर completely neutral, it means
they say neutrality can lead to injustice and oppression of the weak, because if you are being completely neutral, if you are not taking side, if you are not supporting the weak, marginalized and the oppressed, it will lead to injustice and it will further augment the oppression and it will support the status quo. status quo हमने देखा था कि status quo क्या support करता है, oppression को support करता है, because you are not changing the existing situation. तो ये बोलते हैं कि एक्सपोज द अंडरलाइंग सटल ओप्रेसिव ऑर्डर. हमने देखा था कि ऑपरेशन कितना ही मैनिपुलेट है, फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाती है और ये ऑपरेशन बड़ा ही यू कुड से वेरी सटल मैनर में किया जाता है. इट इज़ इनविजिबल और हिडन. तो इसको एक्सपोज करने के लिए क्रिटिकल थियरिस्ट बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट कांट बी वैल्यू न्यूट्रल. ही शुड हैव वैल्यूज, ही शुड बी साइडिंग with the weak, he should be supporting the weak, so he should have certain values, he should categorize certain things as bad and good. Only after that neutrality, if neutrality is renounced by the sociologist, then only social upliftment and elimination of oppression of the weak is possible, right? See now अब हम और dimensions से स्टडी करने की कोशिश करते हैं फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी को. See, one of the argument as to why value neutrality should be rejected in the field of sociology is, see, one argument is value free science of society is not possible. All the sociologist theories and thinking is mainly based on the ideology and values of a sociologist. So this ideology or values of a sociologist is shaped by a variety of factors. For example, उसका socialization और upbringing कैसा हुआ है, उसका educational background कैसा है, कौन कौन से उसको individual experiences and his learnings of life कैसी है. For example, individual experiences and learnings of life में हम देख सकते हैं ऑगस्ट कॉम्ट को. ऑगस्ट कॉम्ट को जो सोशोलॉजिस्ट हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट को. One August Comte is known as a positivist Comte और a good Comte. दूसरे को बोला जाता है नॉन पॉजिटिविस्ट Comte और a bad Comte. So why did, see, हम ये देखेंगे जब Comte के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि Comte during the later phases of his life he turned non-positivist, right? उसका एक टिंज देखने को मिलेगा नॉन पॉजिटिविज्म का उसकी राइटिंग्स में ड्यूरिंग द लेटर फेसेस ऑफ हिज लाइफ, जिसको बैड कॉम्ट भी बोला जाता है, राइट? नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच लेडी. सो जो वो लव फीलिंग्स इमोशंस, वो दैट दीज इमोशंस दे एंटर्ड इनटू हिज सोशल रिसर्च. सो दैट इज हाउ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स ऑफ लाइफ could shape one's ideology. और वो जो आइडियोलॉजी को जैसे शेप करता है उसके हिसाब से ही उसकी सोशल रिसर्च पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेसर, पर्टिकुलर टीचर किसी को एम्यूलेट किया हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल कॉम्ट का जो इनिशियल फेसेस थे, फॉर्मेटिव स्टेज जो फेसेस थे, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ सेंट साइमन. नाउ सेंट साइमन वॉज अ यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट इन द सेंस दैट ही वॉज एम्फसाइजिंग अ क्लासलेस सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी पेनिट्रेट कर रही हो पूरी सोसाइटी में. दैट द सोसाइटी शुड बी एन इक्वालिटेरियन सोसाइटी और एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट? सो उसका जो पॉजिटिविज्म, ऑल्सो सेंट साइमन ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर पॉजिटिविज्म, एंड ड्यूरिंग हिज इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑगस्ट कॉम्ट, दैट इज द गुड कॉम्ट, द अर्लियर कॉम्ट वॉज द गुड कॉम्ट. एंड ये जो कहीं ना कहीं सेंट साइमन का भी उसकी जो राइटिंग्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. उसकी आइडेंटिटी कैसी है सोशल रिसर्चर की? फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट ये बोलती हैं कि ओनली द वुमेन शुड बी फेमिनिस्ट, बिकॉज वुमेन क्या एक्सपीरियंस करती है, उनके एक्सपीरियंसेस कहते हैं कैसे होते हैं. मैन वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, मैन वुड नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दोज फीलिंग्स, दोज इमोशंस, राइट? तो मैन अपने आप को वुमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकता है. वुमेन की क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या एक्सपीरियंसेस है, ओनली अ वुमेन कैन अंडरस्टैंड.
So some of the radical feminists especially, they argue that only women could be feminist. So that is how identity is also shaping your values and ideology, and that is being reflected in your social research. Similarly, Dalit scholars भी यही बोलते हैं, right? Only the Dalit sociologist should advocate for upliftment of Dalits and to uncover the caste structures which are leading to the oppression and exploitation of the lower caste or the lower strata of the society. तो एक तो ये आर्ग्यूमेंट है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी एक तो पॉसिबल नहीं है, और सम आर ऑल्सो सेइंग दैट इट इज नॉट डिजायरेबल इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. फिर आपको 3 सोशियोलॉजिस्ट का मैं एग्जांपल देके बताता हूं. फॉर एग्जांपल एमएन श्रीनिवास, he emphasized on Sanskritization. Why is he emphasizing on Sanskritization? So one point of view is that since M.N. Srinivas was a Brahmin, that is why he is emphasizing on Sanskritization. So his identity of being a Brahmin somehow reflected in his works of Sanskritization, that lower caste are trying to. Sanskritization essentially means CION जहाँ लग जाता है, that is a process. ISM जहाँ लग जाता है, ism, that is an ideology. तो Sanskritization is a process whereby a lower caste is trying to emulate the cultural practices, the behavioral practices. These higher caste act as a point of reference for the lower caste, you know. So उसके बाद क्या है, that lower caste is trying to assert itself and trying to climb the ladder of caste hierarchy by through the process of Sanskritization. लेकिन कुछ क्रिटिक ये भी बोलते हैं कि in the contemporary times reverse Sanskritization is taking place. The higher caste are protesting to gain lower caste status, because lower caste status that they will be starting enjoying reservation in education and employment opportunities. So reverse Sanskritization is taking place. For example, reservation based movements जहाँ पे अजगर का जो कंसेप्ट है, स्पेशली अहिर्स, जाट्स, गुज्जर्स एंड राजपूत्स, एंड इन मॉडर्न टाइम्स यू कुड से मराठाज इन महाराष्ट्र, दे आर आस्किंग फॉर लोअर कास्ट स्टेटस. सो वो एक ये डायमेंशन भी आ सकती है, एक पर्सपेक्टिव भी आ सकता है कि हाउ एन आइडेंटिटी ऑफ ए सोशोलॉजिस्ट इज शेपिंग हिज सोशल रिसर्च और सोशोलॉजिकल स्टडीज. सिमिलरली जब मार्क्स हमने देखा था कि हमने मार्क्स को पॉजिटिविस्ट के तरीके से पढ़ा था, राइट. लेकिन जब मार्क्स भी वॉज ऑल्सो ड्रिवन बाय वैल्यूज, ही वॉज इमेजिनिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट द कम्युनिस्ट यूटोपिया, दैट वन डे कम्युनिस्ट सोसाइटी और communism as a mode of production will be replacing to capitalist mode of production, and that will lead to equality in the entire society. That will lead to emergence of a classless society, and history will cease to exist, because history is nothing but a history of class struggle, right? So he was also desiring a communist utopia. He was dreaming something. He was projecting communism as good, right? So he was making value judgments. Communism is good and capitalism is bad. Similarly, Parsons was also following a political ideology, that is the political ideology of conservatism. So since he was conservative, he emphasized on order and stability in the society. Therefore he emphasized on equilibrium. All the parts of the society will be completely in sync with each other. There will be order and stability in the society. He hated revolutionary changes. He hated revolutions, because revolutions bring large scale changes in society, but he was preferring order and stability. So these values reflected in his works, right? Now whenever you are writing sociological answers, you should try to include various sociological keywords, right? So that will give you an additional benefit, right? तो even a single question में half mark ज़्यादा score कर सकते हो, तो overall आप देखोगे your score will boost by around 20 to 30 marks in sociology. For that you need to write very you should have some technicality or formality should be a part of your answers. So how do we ensure formalism, or your answers should be technical? That could only be possible if you try to
introduce in your answers sociological keywords. For example, now we'll be talking about confirmation bias, right? Michael Lynch, he says scientists are less objective than they claim. Scientists emphasizes on objectivity, value neutrality, value fact dichotomy, but Michael Lynch is saying the scientists are less objective than they claim. He says they are suffering from confirmation bias, right? Now he says then when a scientist is trying to come up with a theory, he has certain preconceived notions, he has certain vague explanation or vague ideas in his mind कि this is how a theory और इसका explanation ऐसे आएगा, right? So he will only be accepting, this scientist will only be accepting data that fit into their theoretical conceptions, right? So you will find what you are looking for and you will be blind or oblivious to what you don't know, right? For example, अगर आप टॉर्च लेके चलते हो तो जहां टॉर्च की लाइट क्या है, जिन सरफेसेस को जो टॉर्च की जो लाइट है, जहां जिन सरफेसेस पे वो लाइट पड़ेगी, ओनली यू विल बी एबल टू सी ओनली दैट पोर्शन. तो सिमिलरली व्हेन अ साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू प्रूव अ सर्टेन थियरी राइट, तो ही कुड ओनली हैव अ नैरो विजन, राइट, ही वॉन्ट बी एबल टू सी बियॉन्ड अ सर्टेन होराइजन. तो जहां जहां अंधेरा होगा, जहां जहां टॉर्च लाइट नहीं पड़ेगी, उसके इन दैट एनालिटिकल कंसेप्ट्स और फॉर दैट पार्ट अ सोशियोलॉजिस्ट विल बी इग्नोरेंट अबाउट इट, राइट. सो तो जो सोशियोलॉजिस्ट के बाद डेटा आएगा, सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, सी कंफर्मेशन बायस इज अ पॉसिबिलिटी इन सोशल रिसर्च और दैट इज हाउ वैल्यू न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल. तो कंफर्मेशन बायस इज मतलब जो आपने एक थियरी इमेजिन की हुई है, सोशियोलॉजिस्ट ने जो थियरी इमेजिन की है, तो जो उसके पास जो सेट्स ऑफ डेटा आएंगे आफ्टर फील्ड स्टडीज, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ही विल ट्राई टू एनालाइज दिस डेटा, try to interlink this data in such a manner so as to prove his theory, because he has certain preconceived notions that about the theory he is going to build up in his mind, right? So he will be trying to justify or he will try to see the data in that particular light so as to fit this data and to justify his theory, right? तो साइंटिस्ट रिजेक्ट कर देते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी सेट्स ऑफ डेटा और उनको एनोमलीज बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं, या उनको एरर परसेंटेज के टर्म्स में वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेट्स ऑफ डेटा है उसको क्या है, इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. सो ओनली दैट डेटा विच कंफर्म्स और लेजिटिमाइजेस देयर प्री कंसीव्ड थियरी दैट दे हैव इन देयर माइंड, दैट उसी डेटा सेट को क्या है अपनी रिसर्च में लेते हैं. दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ माइकल लिंच. तो he says scientists claim to be objective in nature, but they are not objective, they are not value neutral, right? Then there are some practical limitations in following value neutrality in the field of sociology. For example, field limitations की बात करते हैं. You should be writing these keywords in your answer. Field limitations, confirmation bias. For example, Andre Bethe ने study की, you'll be studying about in paper 2. He conducted a field study, that is he went to the field and उन्होंने क्या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेथड का यूज करके वो जो विलेज है श्रीपुरम विलेज तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लाई करता है, राइट, वहां की सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की और उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस भी इसके ऊपर लिखी थी, राइट. तो यहां पे फील्ड लिमिटेशंस क्या आएंगी. फॉर एग्जांपल आंद्रे बेते वाज ए ब्राह्मण, राइट. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जो कल्चर आपको स्टडी करना है, यू विल बी लिविंग अमंग द पीपल ऑफ दैट कल्चर, यू विल बी फॉलोइंग देयर प्रैक्टिसेस, यू विल बी कंप्लीटली इमर्सिंग योर सेल्फ इन दैट कल्चर. तो जब आप कंप्लीटली इमर्स कर दोगे अपने आप को उस कल्चर में, ओनली देन यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट the cultural practices of the people from their perspective, right? By putting yourself in the footstep of the people that you are studying. For that you have to completely immerse yourself in that culture. So that is called as participant observation. You are participating in that culture and subsequently observing it, and then you are trying to come up with your theory. So this is what Andre Bethe did, right? Now during his research,
ही रिसाइडेड इन अग्रहारा। सी अग्रहारा बाद में भी हम पढ़ेंगे, स्पेशली पेपर 2 में, हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है। अग्रहारा हम एक क्रूड वे में बोल सकते हैं कि अग्रहारा इज जनरली अ ब्राह्मण सेटलमेंट, एक लोकेलिटी। सी जो विलेजेस हैं उसमें डिफरेंट जो पोर्शंस हैं दे आर रिजर्व फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। कहाँ आपको ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे, फिर दूसरे ग्रुप एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रिजाइड करेंगे। सो एरिया वाइज देयर सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड। नाउ while conducting research, Andre Bete was living among the Brahmins. Now जब ये ब्राह्मण्स के बीच में रह रहे हैं, then when he will be going to study about the other caste groups, now when he will be visiting the settlement or the area in which those caste groups are residing, right? तो जब वो ब्राह्मणिक सेटलमेंट से आएंगे तो दूसरे कास्ट ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल चेरीज के जहां जाते थे, और आदि द्रविडास, दीज आर द लोअर कास्ट ग्रुप्स, जब वो वहां जाते थे, सिंस ही वाज ए ब्राह्मण एंड ही वाज आल्सो लिविंग अमंग द ब्राह्मण कम्युनिटी, नाउ दीज पीपल यूज्ड टू लुक एट सस्पिशन एट आंध्रे बेते, राइट? कुछ ना कुछ सस्पिशन रहेगा बिकॉज ही बिलोंग टू अ डिफरेंट कास्ट ग्रुप। तो ये कुछ फील्ड लिमिटेशंस आ जाते हैं जो आपकी जो सोशल रिसर्च है उसको कंप्लीटली वैल्यू ऑब्जेक्टिव और वैल्यू न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस डालती हैं। सिमिलरली जब आंध्र बेते एक लो कास्ट एरिया में जाएंगे, ब्राह्मण्स परसीव दैट लो कास्ट एरिया एज अ पोल्यूटेड एरिया, राइट? ठीक है, तो ब्राह्मण्स को भी पसंद नहीं आएगा व्हेन आंध्र बेते विल बी गोइंग टू लो कास्ट एरिया इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देयर प्रैक्टिसेस। सो ये कुछ चीजें उन्होंने अपनी क्या है थीसिस और बुक में भी लिखी हैं आंध्र बेते ने। सो दीज आर सर्टेन फील्ड लिमिटेशंस। Now I will be giving you the example of another sociologist. We have also talked about him in the past. William Footwhite. See, William Footwhite जो थे उन्होंने क्या है, he studied Italian gangs, और उन्होंने उसके बाद अपनी बुक लिखी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, राइट? Now in the beginning of his social research he started as a non-participating observant, right? He was simply observing the practices of the Italian gangs who are generally found at the corner of the street, right? तो उनके क्रिमिनल जो गैंग्स थे, इटालियन क्रिमिनल गैंग्स जो स्ट्रीट कॉर्नर पे क्या है, जहाँ पे वो क्या है, दे गैदर टुगेदर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, वहाँ पे he became part of these Italian gangs. Then he started observing these Italian gangs, and in the beginning he was non-participating observant, right? He was not participating in their activities. Now with time क्या हुआ, जब सोशोलॉजिस्ट क्या है, ये जो डिमार्केशन होता है, डिमार्केशन जो होता है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, सी he became so much immersed in his studies, तो कुछ टाइम के बाद instead of a non-participating observer he became a non-observing participant. इतना इमर्स कर गए थे उनकी प्रैक्टिसेस में that he became a non-observing participant. So this is the another, you could say, a practical limitation why value neutrality पॉसिबल नहीं है उतने एक्सटेंट तक जितना कि पॉजिटिविस्ट उसको एम्फसाइज करते हैं। तो जब ही बिकेम अ नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट, तो क्या है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट जो डिटैच्ड मैनर में आता वो नहीं रहेगा उनकी सोशियोलॉजिकल स्टडीज में, तो उससे क्या बायस आ जाएगा, राइट? नाउ इसका जो अनदर डायमेंशन है इसी स्टडीज का, और जो बाकी सोशियोलॉजिकल स्टडीज में भी पाया गया है, उसके लिए अनदर सोशियोलॉजिकल कीवर्ड है, दैट इज अ हॉथर्न इफेक्ट। आप इसको भी यूज कर सकते हो सोशियोलॉजिकल कीवर्ड को। सी हॉथर्न इफेक्ट क्या होता है कि विलियम फुटवाइट वाज एन आउटसाइडर अमंग दीज क्रिमिनल गैंग्स। नाउ दीज पीपल नो दैट सिंस ही इज एन आउटसाइडर, एक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जब आउटसाइडर आएगा, राइट, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जिनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट आया है,
जिन क्रिमिनल गैंग्स के मेंबर्स के बिहेवियर को और उनकी एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए आया है, दे विल कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मॉडिफाई देयर बिहेवियर व्हेन दे नो दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन, राइट। सो ये अनदर एक प्रॉब्लम है हॉथर्न इफेक्ट सोशियोलॉजिकल स्टडीज में। इनिशियली हॉथर्न इफेक्ट क्या कहां से आया था? ये आया था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है हॉथर्न इफेक्ट। इनिशियली ये देखा जा रहा था कि जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई जाए। तो पीपल स्टार्टेड कंडक्टिंग दीज प्रैक्टिकल स्टडीज, दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्कर्स। Now when workers know that they are under observation, they started increasing their productivity. So workers were not in a natural setting जहां पे अपना नेचुरल बिहेवियर दिखा सकते हैं। When they know they are under observation, they modified their behavior. तो ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है सोशल रिसर्च को, और इसीलिए जो लेबोरेटरी स्टडीज होती है, जैसे आप मैटर को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन मैटर इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मैटर के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, वेयर एज मैन हैज कॉन्शियसनेस। तो मैन एंटिसिपेट कर लेता है कि दैट ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन और उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर मैनिफेस्ट करता है, राइट। अगर आपने सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पढ़ी है, हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था, जब दो लोगों का इंटरेक्शन होता है तो रोल टेकिंग होता है। वन विल बी पुटिंग योरसेल्फ इन द प्लेस of other and try to see the things from his or her perspective. So these members that they are being studies, they are trying to see the things from William Footwhite's perspective. So कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनका जो बिहेवियर है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसलिए एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव स्टडी करना इट इज नॉट पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं हद तक लिमिटेड है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्टिविटी काफी रहती है। सब्जेक्टिविटी इन द सेंस, सी ऑस्कर लुइस एंड वाइजर, दीज आर टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने सेम विलेज के कास्ट ग्रुप्स को स्टडी किया। नाउ सी, वाइजर इज अ फंक्शनलिस्ट, तो वो वहां के कास्ट स्ट्रक्चर को कैसे डील करता है, उसको बोलता है कि वहां की को सोसाइटी के बारे में वो लिखता है कि वो जो सोसाइटी में रेसिप्रोसिटी है, कंप्लीमेंटैरिटी है और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। और इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में जो डिवाइडेड है पूरा विलेज, उसमें डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। सो वहां पे क्या है, एक डिवीजन ऑफ लेबर है, राइट। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अमंग दिस डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, सो देयर इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी और रेसिप्रोसिटी अमंग देम, राइट। इसको ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी भी बोल सकते हैं, जो कि डुर्कहाइम ने कंसेप्ट विल बी स्टडिंग अबाउट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, राइट। ऑस्कर लुइस हु वाज अ मार्क्सिस्ट इज एनालाइजिंग द सेम कास्ट स्ट्रक्चर, और वो क्या है, उसी को एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। और वहां पे जहां ये बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, कंप्लीमेंटैरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, ऑस्कर लुइस सेइंग कि देयर इज अ डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द वीक बाय द पावरफुल, राइट। उन्होंने वहां के एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, और वहां पे वो बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, दैट इज द दलित्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स जनरली और ओवरवेलमिंगली बिलोंग टू लोअर कास्ट, दैट इज द दलित्स, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय लैंडलॉर्ड्स, राइट, हायर कास्ट। लैंडलॉर्ड जनरली बिलोंग टू हायर और द डोमिनेंट कास्ट। तो सब्जेक्टिविटी है, सेम चीज को टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैविंग टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टू डिफरेंट और बल्कि इनफैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग व्यू से सेम चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये जो हमने देखे वेरियस पर्सपेक्टिव देखे फैक्ट, वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। अगर आप कंक्लूड करना चाहोगे अपने आंसर को, देन वन सेंटेंस यू कुड राइट, राइट। It depends on you how you want to conclude an answer or whether you want to write a balanced answer. So one sentence you could write that neutrality is a myth. No thinking man can be absolutely neutral, right? He will always be having certain value judgments. So this was the topic of fact, value and objectivity. In the next lecture, we'll be studying about Auguste Comte.